A very good evening to each one of you present here today. Today, I, Survi, currently serving as a senior executive, welcome you all to this special webinar organized by the Finance and Investment Society of Shahid Bhagat Singh College. I want to begin by expressing my gratitude to each of you for taking your time to join us here today. Your presence here reflects your keen interest in learning and developing your understanding of the world of finance. The Finance and Investment Society has been a key part of our college for the past 12 years. And during this time, we have tried our best to foster a learning environment for students passionate about finance. Today, we are here to introduce you to one of our most successful initiatives, that is our in-house sessions. Now, in-house sessions are an initiative which is undertaken by the projects department of the Finance and Investment Society. Today, I, along with Kanishk and Shashank, currently serving as the heads of the project department, will be taking up the webinar. Now, these sessions provide a platform where our society members come together to share their knowledge with one another related to finance. Each session is conducted by one of our own members who shares their knowledge on a specific topic about finance, be it related to investments, technology, or any upcoming innovations in fintech. Now, this peer to peer learning model is what sets out a society apart, creating a space where members can sharpen their understanding of finance in a supportive and collaborative setting. Now, although these sessions are usually exclusive to FIS members, we recognize that it is important for prospective members like you to get an understanding of what they can expect from our society. Therefore, our goal today is to give you a glimpse into the value that the in-house sessions bring to all our members and ultimately to help you make an informed decision about joining FIS. So, without further ado, let's dive and explore what makes these in house sessions so special. I encourage you to engage actively today and keep an open mind. The world of finance is vast and there's always something new to learn. So, let's get started. Now, our topic for today's presentation will be the basics of stock market. So, let's start with the very first question as to what is a stock market. So, the stock market is a place where people can buy and sell securities or shares of a company, which also are known as stocks. So, now the stock market that is there, it plays a very important role in the economy because it has dual benefits. First of all, it benefits the companies as they are able to raise money through public without any loan and without having a fixed payment of interest. Secondly, it is also helpful to investor like us because as the stock prices rise, we are able to gain money. Also, at the same time, it also tells us about the situation of the economy. That is, if the stock market is growing, it means there is an economic expansion and vice versa. That is, when the economy is low, the stock market will be decreasing and it will show us that there is an economic economic slowdown. Now, next is how does the stock market actually work? So, the stock market actually works through exchanges. Exchanges basically, there are two main exchanges in India, that is the BSE, Bombay Stock Exchange, and the National Stock Exchange. So, what do the exchange actually do? Exchanges are platforms where buyers and sellers are able to meet to trade in stocks. We already know that, like, when, when we are doing real trading, there must be a match between the buy orders and the sell orders. Only then can a transaction take place. So that is also the work of an exchange to match the buy orders with the sell orders. Apart from that, it also ensures that all the trades happen fairly and safely. Now let's talk about stock prices. Now stock prices are determined by the supply and demand forces. And the conditions are that if more people want to buy a stock, that is, if there is a high demand for a stock, its price will go up and vice versa. That is, if more people want to sell a stock, that is, there is a high supply, then the prices will go down. You already must, many of you have learned about this. This can be seen as law of demand and law of supply as well. And now there are factors that influence stock prices. So basically, first factor is the market sentiment.
Market sentiment can be talked about whether investors are feeling confident or worried. If investors are confident about their transaction or if they are buying more, then the stock prices will rise. And if they are worried or they are doubtful about their stock expectations, then they may not be investing that much. Second are the company earning report. So, on the basis of how well a company is performing, that can also affect the stock prices of a company. If a company is not performing well, maybe people are not interested in buying that stock, therefore, the company may have to lose out on its share price. Third is the economic data. So, economic data is also affecting the stock prices of the company. And lastly, we'll be talking about the global events. So, the geopolitical events or global events such as political changes, or like we can see the Russian Ukraine war, any events like these also affect the stock prices. Now, the question comes, why should we invest in stocks? So, today I will be talking about three main points. First is wealth accumulation, second, ownership and voting rights, and third is the dividend income. So let's talk about wealth accumulation. So everybody must be knowing this fact that stocks have historically delivered higher returns than any other asset class over a long period of time. And stocks is one of those assets which has the capability to outpace inflation. Therefore, in terms of talking about whether we are actually earning or not, then we can say by investing in stocks we are actually earning. When we talk about, suppose we talk about fixed deposit, although we are earning money in fixed deposit, but the interest rate provided there is usually less than what is the inflation rate. So when we talk about it, we are actually losing out on money. But in stocks, we are actually increasing our money. Therefore, there is wealth accumulation. Now, ownership and voting rights. So basically, shares provide you ownership of a company. Whenever we buy shares of a company, we are actually becoming partial owners in that company. And many stocks also provide us with voting rights. And this induces us to vote on important occasions like selection of suppose board members. So that is also one of the reasons why one should invest in stocks. Apart from that, dividend income. Although when the prices of stock rise, we usually gain from that. But apart from that, when a company is usually having high earnings, they tend to give dividend to its shareholders. So that is something which the companies share their profit by paying dividends to shareholders, offering a regular income stream and potential stock price appreciation. So basically, this is an added advantage for those who have invested in the stocks of a company. The company rewards them by providing them with dividends whenever they have high earnings. Now let's move on to the working of an exchange. So exchange, how does an exchange basically work? So exchanges like NSE and BSE act as platforms where buyers and sellers come together to trade stocks in a regulated and transparent environment. So as I just discussed, exchanges provide fair trading practices to all the shareholders investing in stocks. Apart from that, the exchanges ensure fair pricing, timely execution, and transparency in transactions. Therefore, since now everybody must be knowing that all the work is done online and there is no paperwork now required, therefore there is transparency in transactions and there are less chances of being fraudulent activities. And it also provides liquidity by matching buy and sell orders. As I mentioned that in a real stock market, we can only buy or sell shares when we are able to match them with another buy or sell order. So that can be done through exchanges. And in India, there are two main exchanges, NSE, which is the National Stock Exchange, and BSE, which is the Bombay Stock Exchange. Now talking about market indices. Now popular indices include Nifty 50, Bank Nifty, Fin Nifty, and S&P BSE Sensex. Now, I hope most of you must have heard about Nifty 50 and Sensex. These are basically the indices of the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. So, now, why are indices important? Indices are important because they provide a snapshot of the overall market health and serve as a benchmark for tracking the broader market performance. And also, investors use indices to compare the performance of their portfolios and gauge market trends, helping to make informed investment decisions. So basically, through indices, shareholders can compare which shares are doing well and which are not. Therefore, they can make better informed decisions
about whether to buy a stock or whether to sell a stock. Now, I would like to hand over to Shashank and he would be continuing with the technical analysis. Thank you, Survi, for explaining this. And hello, guys. My name is Shashank, and I'm the head of projects department. Today, I'll be covering the technical analysis part. And guys, we have tried to keep it basic so you all can understand. And I hope you all will enjoy this session, and it's going to be interesting. So now let's begin. Technical analysis part is divided into two parts, which is a candlestick patterns and indicators. So first I will teach you the theory part and then I will do practical of same. So this slide is about basics of candlesticks. So as you guys can see here, what are candlesticks? So candlesticks are widely used chart types in technical analysis that show the price movement of a security. As you guys can see here, this is a green candle and this one is a red candle pattern. So each candlestick displays four key price points for a specific period: the open price, the high, close, and the low prices. Okay. So talking about the structure of a candlestick, uh, candlestick basically have two parts. This green wala part, ये जो है, ये इसको body कहते हैं, and this black lines, these are called wicks. These are the wicks of candlestick. Okay. तो इस कलर के बारे में अगर आपको बताऊं तो दिस ग्रीन कैंडल इंडिकेट्स अ प्राइस इंक्रीज इन द मार्केट and this red one shows a price decrease. So moving on to the next slide, we have basic candlestick patterns. So first one we'll talk about a doji. This is a doji. ये आप देखो, ये एक डोजी है, इसमें बॉडी फॉर्मेशन नहीं होती डोजी में. डोजी इज ऑल अबाउट विक्स. So the doji is similar to a spinning top but with no real body, meaning the open and close prices are equal. जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कोई बॉडी नहीं होती, तो उसका जो ओपन और क्लोज प्राइस होता है वो इक्वली होता है. तो इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंसाइट इनटू मार्केट सेंटिमेंट एंड कैन सिग्नल इंडिसीजन और ए पोटेंशियल रिवर्सल. तो जो डोजी की फॉर्मेशन होती है वो तो या तो एक डाउन ट्रेंड के बाद होती है नीचे कहीं बॉटम पे, और वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पोटेंशियल रिवर्सल आने वाला है मार्केट में. या फिर डोजी की जो फॉर्मेशन होती है वो एक अप ट्रेंड के बाद ऊपर पे कहीं होती है, एक अप ट्रेंड में, और उसके बाद वहां पे डोजी की फॉर्मेशन होती है, इस तरीके का बनता है. उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां से पोटेंशियल रिवर्सल आएगा और वहां से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी. ठीक है. अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जो अभी आपने थ्योरी पार्ट समझा है उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आप. सो गाइज विल टेक चार्ट ऑफ कोल इंडिया, एंड यू गाइज नो कि कोल इंडिया इज engaged in mining and production of coal. So we'll try to find a doji here. एक डोजी ढूंढने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे. हमें ये चीज ध्यान रखना है, या तो हमें उसको डाउन ट्रेंड के नीचे बॉटम पे ढूंढना है या फिर एक अप ट्रेंड के बाद हमें ऊपर की तरफ देखना है उस चीज को. हाँ, आई होप दिस इज विजिबल. मैं थोड़ा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ. ये देखो, एज यू गाइस कैन सी मैंने ये सर्कल करा है. ये जो ग्रीन वाली है इसको डोजी कहते हैं. इसमें देखो कोई बॉडी नहीं होती, सिर्फ विक होता है. ठीक है. मैं इसको साइड कर देता हूँ थोड़ा. सॉरी फॉर दिस. जैसा मैंने आपको बताया था, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद इसकी फॉर्मेशन होती है. तो आप यहां से देखो, अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 27% का डाउनफॉल आया है यहाँ से प्रीवियस हाई से. उसके बाद एक डोजी की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है. आई गेस इट्स विजिबल. आपके एंड पे कुछ नेटवर्क इशू होगा, चेक करो आप. हाँ, तो गाइस यहाँ देखो, यहाँ एक डोजी की फॉर्मेशन हुई है. उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कि मार्केट वहां से फिर 50% के आसपास वहां से एक अपसाइड मूव आया है विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 140 डेज. मतलब 5 महीने में आप कह लो वहां से डोजी की फॉर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है और 50% का इंक्रीज मिला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है. चलो मैं आपको ये चीज आइशर मोटर में करके दिखाता हूँ. तो गाइज आइशर मोटर इज अ लीडिंग प्लेयर इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया, एज यू ऑल गाइज नो. तो हम यहाँ पे डोजी की फॉर्मेशन देखते हैं, डोजी ढूंढने की कोशिश करते हैं.
एंड डोंट वरी गाइस, विल ओपन द Q&A सेशन एट लास्ट, तो आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे वो हमसे आप लास्ट में पूछ सकते हो। आई होप दिस इज विजिबल। सो गाइस, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक डोजी की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, और एक डोजी यहाँ पे भी बनी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखो, जो हमारी क्राइटेरिया थी कि ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनना चाहिए, तो अगर मैं, देखो आप 27% का यहाँ से डाउनफॉल आया, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी की फॉर्मेशन हुई है। मार्केट ने ट्राई करा है थोड़ा ऊपर जाने को, बट फिर से रिट्रेसमेंट हुआ, एंड देन फिर यहाँ पे एक और डोजी की फॉर्मेशन हुई हुई है, एज यू गाइस कैन सी। और उसके बाद देखो मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट में फिर यहाँ से आप देख सकते हो 72% की रैली आई है मार्केट में यहाँ से अपसाइड की वो, और ये 240 डेज में हो गया, लगभग 8 मंथ्स में आपको 72% का रिटर्न। अगर आप इसको खरीद के सिर्फ बैठ जाते होल्ड करते तो आपको 72% के लगभग रिटर्न मिला आपको, ठीक है। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर पीपीटी, द सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न विच वी हैव हियर इज हैमर। तो गाइस, दिस इज कॉल्ड अ हैमर। हैमर तो आप लोगों ने अपने घर में देखा ही होगा। हाँ, हैमर कैसा होता है? एक वुडन पार्ट होता है जो कि लंबा होता है, लाइक उसके ऊपर उसकी आयरन की बॉडी होती है। तो सिमिलरली ये हैमर होता है, ठीक है। तो द बुलिश हैमर इज अ की पैटर्न दैट फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये ग्रीन वाली हैमर है, इसको बुलिश हैमर कहते हैं। और आप लोग ये चीज याद रखना कि हमेशा डाउन ट्रेंड के बॉटम पे होती है, ठीक है। तो इट इज अ बेसिकली अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो और फिर वहां से ये आपको पोटेंशियल रिवर्सल भी बताता है कि एक अब डाउन ट्रेंड के बाद, डाउनफॉल के बाद एक हैमर की फॉर्मेशन हुई, और फिर वहां से अब पोटेंशियल रिवर्सल आ सकती है मार्केट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट फीचर्स अ स्मॉल रियल बॉडी और आफ्टर अ लॉन्ग लोअर शैडो इंडिकेटिंग दैट बायर्स आर स्टेपिंग इन आफ्टर अ प्राइस डिक्लाइन। मतलब ये बताता है कि बायर्स अब यहाँ से, बायर्स ने टेक ओवर कर लिया, सेलर्स अब जितने थे मार्केट में वो तो Can you please अपना, repeat? सॉरी, Can you please repeat it? हाँ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो हैमर की फॉर्मेशन होती है वो एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पे होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एक हैमर है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि डाउन ट्रेंड के बॉटम पे हैमर की फॉर्मेशन होती है, और उसका जो ये जो बॉडी होती है, जैसा अभी हमने कैंडलस्टिक में सीखा था कि स्ट्रक्चर कैसी होती है कैंडलस्टिक की, तो एक छोटी सी बॉडी होती है और ये लंबी विक होती है इसकी, जो अगर आप इसका बॉडी रेशियो देखते हो तो 1:4 1:5 के समथिंग एस्पेक्ट रहता है बॉडी रेशियो का। और आप देख सकते हो इसका जो प्रायर ट्रेंड देखना है आपको, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे ही मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट डाउन कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। आई आई होप आप कुछ तो नोट करोगे इसमें, ठीक है। मैं आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पे ये खोल के दिखाता हूँ। एज यू गाइस नो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इज मोस्ट डिवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी विद प्रेजेंस अक्रॉस टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स इन आवर कंट्री। सो हम यहाँ पे एक हैमर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे हमें एक हैमर मिल चुका है। ये देखो, जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, दिस इज कॉल्ड हैमर। और मैं आपको थोड़ा परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि हमारी जो क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट थी कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, उसके बॉटम पे बनना चाहिए। तो आप ये देख लो कि 32% का यहाँ पे डाउनफॉल आया, उसके बाद डाउनफॉल आने के बाद यहाँ बॉटम पे एक हैमर की फॉर्मेशन हुई है, और आप देख लो उसके बाद प्राइस यहाँ पे नहीं आया। प्राइस ने इतनी अच्छी खासी ऊपर की तरफ हमें रैली दी है, ये देख सकते हो आप। तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, जूम आउट ही करना पड़ेगा इसको, तो लग रहा है स्क्रीन से बाहर ही जा रहा है ये। आप यहाँ से देख लो, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ परसेंटेज वाइज में, तो आप देख लो 250 डेज में
अप्रोक्स 8 महीने के आसपास आपको इसने लगभग ये स्टॉक डबल हो गया है, 100% का इसने अपसाइड में मूव दे दिया है। तो आप ये चीज देख लो कि जो सिर्फ थ्योरी है वो थ्योरी नहीं होती, वो प्रैक्टिकल भी उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है मार्केट में, तो ये चीज भी है। तो नाउ मूविंग डाउन to our next slide, we have the third candlestick pattern, which is a shooting star. So, guys, shooting What's the star. difference between red and green hammer? Sorry. Like, what's the basic difference between red hammer and a green hammer? देखो बात ऐसी है कि ये थोड़ा बेसिक है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, इसलिए देखो अगर मैं सबको बताने जाऊंगा आगे फिर वो बहुत लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। रेड और ग्रीन हैमर में ऐसा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, कलर का इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट हम ऐसे ग्रीन से डिनोट करते हैं कि वो मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है, लाइक उसमें कि अप ट्रेंड आने वाला है, इसलिए हम जो ग्रीन हैमर को एज अ सिग्निफिकेंस लेते हैं कि वहां से पोटेंशियल रिवर्सल अप ट्रेंड में आने वाला है। वहां अगर आपकी ऐसी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती कि वो रेड में बन रही है ग्रीन में बन रही है, बट वही मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा अगर मैं जो यूज करता हूँ, मैं ग्रीन हैमर ही यूज करता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो वहां से मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, वहां से फिर मैं 80% प्रोबेबिलिटी में अपनी मान के चलता हूँ कि फिर वहां से मार्केट में ऊपर की तरफ रिवर्सल आ सकती है, ठीक है। तो कमिंग डाउन टू a third candlestick pattern, which is a shooting star. So the shooting star is a powerful single candlestick pattern that signals a potential reversal in a bullish trend. ये देखो ऑपोजिट ऑफ हैमर ही है, ठीक है। आप देख सकते हो हैमर में क्या होता था, हैमर में उसकी बॉडी जो होती थी ऊपर की तरफ बनती थी और विक नीचे होती थी, बट इसमें विक ऊपर होती है और बॉडी नीचे होती है, ठीक है। आप अगर चार्ट में देखने जाओगे तो ये रेड वाली देखना, रेड वाली देखोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी वहां से रिवर्सल की ज्यादा होती है। तो द इट हैज अ स्मॉल रियल बॉडी, जैसा मैंने आपको बताया, विथ लोअर एंड ऑफ अ रेंज एंड अ लॉन्गर अपर शैडो, शोइंग दैट बायर्स पुश प्राइस हायर बट सेलर्स टू कंट्रोल बिफोर द क्लोज। तो और इट इज अ बियरिश पैटर्न इंडिकेटिंग दैट अपवर्ड ट्रेंड में बी लूजिंग मोमेंटम। ये एक बियरिश पैटर्न है और ये आपको अप ट्रेंड के ऊपर में मिलेगा टॉप पे, और वहां से ये बताता है कि अब मोमेंटम जो लूज होने लगी है, ठीक है। और प्रायर ट्रेंड आप नोट कर लो, ये अप ट्रेंड के ऊपर ही मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप शूटिंग स्टार डाउन ट्रेंड में ढूंढने नहीं जाओगे, आप अप ट्रेंड में ढूंढोगे शूटिंग स्टार को। ऑफ कोर्स ये सोसाइटी में सिखाई जाएगी ये सारी चीजें, इसलिए हम ये सेक्शन करवा रहे हैं आपके लिए। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? सेकंड पॉइंट का Guys, I want to interrupt. I want to address that. If any one of you has any doubts related to this session, you can keep a note of it. We will be opening the floor for all of you for a small Q&A round towards the end of the session. So if you have any queries, you can just keep a note of it and ask towards the end of the session. Sorry. Okay. थैंक यू फॉर दिस सान्या। एंड नाउ जैसे हमने शूटिंग स्टार पीपीटी पे देखा था, अब हम इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि चार्ट पे फॉर्मेशन कैसे हुई शूटिंग स्टार की और फिर वहां से क्या हुआ है मार्केट में। आप लोगों को पता है यस बैंक, लाइक मैंने यस बैंक का चार्ट ओपन करा और यस बैंक प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया, एज यू ऑल गाइस नो। तो I'd like to show you what happened in the chart of Yes Bank. हाँ, तो एज यू गाइस कैन सी हियर, जैसा कि हमने पीपीटी पे देखा था कि एक शूटिंग स्टार कैसा होता है, वो सेम फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे देखो, ठीक है। और वहां पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो तीन चीजों की थी कि एक तो ये जो बनना चाहिए वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। तो देखो ये एक अप ट्रेंड आया 45% का, लगभग नियर अबाउट 45% का अप ट्रेंड आया, उसके बाद ये शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और इसके आसपास कुछ भी नहीं है, देख लो। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो 400 के आसपास बना ये, तो 400 के पास प्राइस नहीं आया फिर इसका। आप उसके बाद देखो फिर यहाँ से मार्केट में हुआ क्या है, फिर मार्केट ने ऐसे करके रैली नीचे की तरफ दे दी है,
ठीक है। अगर मैं आपको ये परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तो 62% का फॉल आ गया है 3 महीने के अंदर। तो आप ये सारी चीजें भी देखते हुए चलो, नोट डाउन करते हुए चलो। मैं चाहूंगा कि इसके भी आप पॉइंटर्स बना लो, तो आपको ही फायदा होने वाला है आगे। ठीक है। आप सेम चीज मैं एक और स्टॉक में करके दिखाता हूँ आपको, भारतीय एयरटेल में करके दिखाता हूँ। और आप लोग जानते हो कि इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया। तो अब हम कोशिश करते हैं कि इसमें हम शूटिंग स्टार ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो स्टॉक मार्केट थोड़ा फॉलो करते होंगे उनको पता है कि कुछ हिस्ट्री रही है भारतीय एयरटेल के साथ भी। जब भी जियो ने टेक ओवर नहीं करा था इंडिया पे, तब टेलीकॉम इंडस्ट्री में कुछ ही प्लेयर्स थे, उसमें से एक भारतीय एयरटेल बहुत ही बड़ा नाम है। ठीक है। आप ये देख सकते हो, रुको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई, आप देख लो। और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि एक अप ट्रेंड के ऊपर बनना चाहिए। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से लगभग 55% का अपसाइड मूव आया मार्केट में। उसके बाद एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है, और उसके बाद हम देखते हो वहां से फिर मार्केट में हुआ क्या है। आप देख सकते हो फिर वहां से मार्केट ने डाउन साइड का इतना तगड़ा मूव दिया है, आप देख लो। ठीक है। अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तो 41% का आपको डाउन साइड में मूव मिल गया है 176 डेज में। 6 महीने में आपको 45% मिल गया इस चीज में। ठीक है। नाउ मूविंग बैक टू आवर पीपीटी। नाउ fourth and the last candlestick pattern we have today is bullish engulfing pattern. As the name suggests, engulfing का मतलब ये होता है कि कोई भी एक चीज दूसरी चीज को अपने अंदर engulf कर लेती है। तो the bullish engulfing is a two candlestick pattern। इसमें दो कैंडल लगते हैं, एक रेड ये वाला और एक ये ग्रीन। ठीक है। और एक चीज याद रखना, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो रेड वाले कैंडल से हमेशा बड़ी होती है। तो The bullish engulfing is a two candlestick pattern that forms at the bottom of a downtrend। आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो bullish engulfing pattern है ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनती है। तो ये जो मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ ना कि आप ट्रेंड के टॉप पे बनती है और डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनती है, ये चीज नोट करके रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज अ बेयरिश। देख लो, ये जो रेड वाली है इसको हम बेयरिश कैंडल की तरह डिनोट करते हैं, और जो ये ग्रीन वाली है इसको बुलिश कैंडल। तो फॉलोड बाय सेकंड बुलिश कैंडलस्टिक दैट कंप्लीटली इनगल्फ्स द बॉडी ऑफ द फॉल। जैसे आपको मैंने बताया कि जो ग्रीन वाली कैंडल होती है वो रेड वाले कैंडल को पूरी इनगल्फ कर लेती है। ठीक है। तो प्रायर ट्रेंड जो इसका होता है ये डाउन ट्रेंड पे होता है, और दिस पैटर्न सिग्नल्स अ पोटेंशियल रिवर्सल टू द अपसाइड एंड प्रॉम्प्ट्स ट्रेडर टू गो। ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बन जाता है तो वहां से फिर आपको पोटेंशियल रिवर्सल देखने को मिलती है मार्केट में। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाता हूँ कि इसकी प्रैक्टिकल में ये हुआ था या नहीं हुआ था किसी स्टॉक में, आपको चीज करके दिखाता हूँ। तो विल टेक चार्ट ऑफ वेदांता। एज यू गाइस नो कि वेदांता इज engaged इन एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मिनरल्स एंड ऑयल्स इन इंडिया। और आज की डेट में तो वेदांता हाई पे हाई लगाए जा रहे हैं मार्केट में। तो हाँ, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, आप लोगों को और अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है। और आप टेंशन मत लो, आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो हम लास्ट में लेंगे, आप बस नोट डाउन करके लिखो आपको जिस भी। ठीक है। वो हम लास्ट में आपको करेंगे, आपकी क्वेरीज लेंगे हम। ये चीज देखो, ये रहा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। देख सकते हो आप, ये जो ग्रीन वाली कैंडल ने ये रेड वाली कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, एक अप ट्रेंड के बाद डाउन साइड की फॉल आई है, 45% की फॉल आई है मार्केट में। उसके बाद ये इनगल्फिंग पैटर्न बना है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने अपसाइड में रैली स्टार्ट कर दी है, देख लो। ठीक है। मेरे को तो लग रहा है इसके लिए आपको थोड़ा जूम आउट करके ही दिखाना पड़ेगा, तो स्क्रीन से भी ऊपर ही जा रही है भाई साहब। यहाँ से देखो आप, मैं आपको परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करके दिखा दो, टिल डेट ही देख लो आप।
जब से है 200% का मूव मिला है स्टॉक में। तो 200% का मूव कुछ छोटी मोटी बात नहीं होती, वो भी एक साल में अगर आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सीएनबीसी आवाज पे बुला लेंगे लोग आपको, अगर आपने किसी स्टॉक में 200% का मूव दे दिया तो, और होल्ड कर लिया आपने तो now moving to our PPT, second part of technical analysis, we have indicators. So in Krishna, indicator, yes, Anirudh has some doubt. Can you please explain this using the Tata Motor stock? Like, can you please take the example of Tata Motor stock in this? टाटा मोटर्स में क्या चाहिए उसको, like which candlestick pattern you want in Tata Motors? Anirudh, you can unmute and tell कि आपको क्या चाहिए, which candlestick pattern you want to see in Tata Motor? A shooting star. Sorry? Shooting star. अच्छा, shooting star, okay. चलो भाई, ये तो यही मिल गया, ये देखो, ये देख सकते हो, दिस इज अ गाइस, दिस इज अ शूटिंग स्टार, एंड जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को भी दिख रहा है स्क्रीन पे, अपसाइड मूव ऑफ 70%, देन मार्केट वहां पे कंसोलिडेशन में आ गई। ठीक है, कंसोलिडेशन, ज्यादा आप लोग टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ, कंसोलिडेशन मतलब मार्केट एक ही प्राइस पे रुक जाती है बस। ठीक है, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, एंड लाइक फिर वहां से आप देख सकते हो शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन के बाद 20% का डाउनफॉल आया मार्केट में। ठीक है, विच इज अ गुड डाउनफॉल, बहुत ही बढ़िया है परसेंटेज टर्म्स में, आप 3 महीने में आ गए। ठीक है, तो आई गेस वी कैन नाउ मूव ऑन। हाँ, Yes, yes. Thank you. so as I was saying कि indicators, second part of our technical analysis is this indicator part. Okay, so in indicator we have two things, moving average and RSI. So first I will teach you about moving average, then I will move on to RSI. So moving average, we have two different types of moving average. First one is simple moving average and second one is exponential moving average. So in a simple moving average of the securities price over a set period, it smooths out price data to identify trends over common period are 9-day and 50-day moving average. Okay, तो this क्रॉसओवर जो होती है 9 और 50 डे की मूविंग एवरेज को, उसको गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं। एक वो थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट आपको मैं उसका प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी वो चीज। एंड द सेकंड टाइप ऑफ मूविंग एवरेज इज ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू एसएमए बट गिव्स मोर वेट टू रीसेंट प्राइस। इसमें रीसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज दी जाती है, मेकिंग इट मोर रिस्पॉन्सिव टू न्यू इन्फॉर्मेशन। कि अगर मार्केट में कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है किसी भी सेक्टर में, तो फिर वहां पे जो प्राइस की मूवमेंट होती है तो ये ईएमए पे ज्यादा इफेक्ट पड़ती है उस चीज की। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट its usage, तो moving averages help identify trends and support and resistance levels. Okay, तो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि क्रॉसओवर क्या होता है वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो क्रॉसओवर बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कैन सिग्नल बाय और सेल अपॉर्चुनिटीज। ओके गाइस, तो जो ये क्रॉसओवर है यहाँ पे बोला गया है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में होता है। तो मैं आपको 9 और 50 डे की ईएमए पे करके दिखाऊंगा। तो 9 डे का जो ईएमए है आप उसको शॉर्ट टर्म कंसिडर करना, और 50 डे का जो ईएमए है उसको लॉन्ग टर्म कंसिडर करना। नाउ आई टेक यू टू द चार्ट और फिर मैं आपको वहां पे समझाता हूँ। तो विल टेक चार्ट ऑफ टाइटन। तो और फिर मैं यहाँ पे ईएमए लगा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी इसकी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। चलो, इसका तो 9 लेंथ है, सही है, इसकी 50 करनी पड़ेगी।
मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ आपकी विजिबिलिटी के लिए थोड़ी सही होगी। हाँ तो गाइस, ये जो ब्लैक वाली ईएमए है ये 9 डे मूविंग एवरेज है, और ये जो 50 वाली है, ये जो ब्लू वाली है ये 50 ईएमए लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो एज यू गाइस नो कि टाइटन is the most respected lifestyle company which deals in jewelry and eyewear in India। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ है, फिर मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया वहां से। ठीक है, आप देखो, यहाँ पे देखो आप, एंड द क्रॉस ओवर आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि जो शॉर्ट टर्म वाली ईएमए होती है विच इज दिस ब्लैक वन, जो 9 ईएमए है, वो 50 ईएमए को नीचे से क्रॉस करती है। आप ये चीज देखो यहाँ पे, इसने यहाँ से नीचे से क्रॉस करा है इस चीज को। ठीक है, ऊपर से कट नहीं करती, नीचे से कट करती है। आप ये चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब प्राइस लगभग 2458 के आसपास जब इसका प्राइस था, तो 9 की ईएमए ने, यहाँ पे आप देख सकते हो 9 की ईएमए ने इसको क्रॉस करा ऊपर की तरफ, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने, देखो मार्केट में एक तगड़ी रैली आई है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ परसेंटेज टर्म्स में, तो आप देख लो 60% के आसपास आपको यहाँ से ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल रहा है। और ये कितने दिन में मिल रहा है? 11 महीने के आसपास में आपको ये चीज मिल रहा है इसमें। ठीक है, अब आपको एक तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, अब चलो अब मैं आपको सेम चीज देखो, सेम चीज हमें यहाँ पे भी मिल गई, जो मैंने अभी आपको बताया कि देख लो क्राइटेरिया सारी मीट हो रही है हमारी। 9 की ईएमए 50 को नीचे से क्रॉस कर रही है, दिस ब्लैक वन इज क्रॉसिंग 50 ईएमए ऑफ दिस ब्लू वन फ्रॉम डाउन साइड। फिर वहां से देखो क्या हुआ है मार्केट में, फिर वहां से मार्केट ने अपसाइड की मूव दिखाई है 32% के आसपास, 32% के आसपास आपको वहां से अपसाइड में मूव देखने को मिला है। ठीक है, चलो हम कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, आइशर मोटर ले लेते हैं। ठीक है, और आई होप यू गाइज नो कि आइशर मोटर इज अ लीडिंग प्लेयर इन ऑटोमोबाइल इन इंडिया। ठीक है, तो विल ट्राई टू फाइंड अ क्रॉस ओवर। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, यहाँ भी देख लो क्या हुआ है। यहाँ देखो ये क्रॉस ओवर हुई है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया, 20% आपको यहाँ मिल गया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ भी देख लो आप, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुई है, फिर यहाँ से मार्केट ने मूव करा है 52%। फिर मैं और ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि एक अच्छी रैली कहाँ पे आई है, वो दिखाता हूँ फिर आपको। ये देखो, ये देखो गाइस, मिल गई हमें एक अच्छी खासी अपसाइड की रैली। यहाँ पे देखो क्या हुआ, 9 की ईएमए ने 50 की ईएमए को नीचे से कट करा है, उसके बाद स्टॉक डबल हो गया। देख सकते हो आप लोग 250 डेज में लगभग स्टॉक डबल हो गया है। तो यार इतने रिटर्न तो डबल क्या ही मिल रहा है आपको बताओ। एफडी आपको 15% का रिटर्न दे रहा है, वो भी एफडी तो क्या ही दे रहा है 15% का, म्यूचुअल फंड 15 का दे रहा है, एफडी 9 या 9.5% का रिटर्न मिल रहा है आपको। तो देख लो ये चीजें प्रैक्टिकल में कैसे काम करती है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो now moving down to our next slide, we have the second indicator which is RSI। ठीक है, तो what is RSI? A momentum oscillator that measures the speed and change of price movements. It ranges from 0 to 100 with readings above 70 indicating overbought conditions and reading below 30 indicating oversold condition। तो इसमें ना एक प्राइस रेंज होती है, उस प्राइस की जो रेंज होती है
वो 70 और 30 की होती है, ठीक है, आरएसआई में। जब भी आरएसआई 70 के पास होती है तो वो ओवरबॉट जोन में आ जाता है, फिर वहां से पोटेंशियल रिवर्सल होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है, डाउनफॉल आता है मार्केट में, ठीक है। सेम चीज मैं आपको करके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, बट आप यहाँ भी समझ लो। और जो 30 की होती है, जब आरएसआई जब 30 के लेवल्स पे आ जाती है तो वो ओवरसोल्ड कंडीशन में आ जाती है, और फिर वहां से मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। देखो गाइज, मैं बारी बारी प्रोबेबिलिटी एक वर्ड यूज कर रहा हूँ। देखो, मार्केट में ना कुछ भी आप श्योर शॉर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी पे ही गेम खेलना होता है मार्केट में। आप कुछ भी श्योरली नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। एक प्रोबेबिलिटी होती है, आप उस पर प्ले करते हो और पैसे बनाते हो, ठीक है। तो ये जो 30 वाली, जब आरएसआई 30 के लेवल्स पे आती है तो वो इंडिकेट करती है कि अब वहां मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशंस में आ गए, ठीक है। लक नहीं होता, बट आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मार्केट में सिर्फ आपका आपका लक होता है। आपका नॉलेज होता है, आप कितना सीखते हो उस चीज को, कितना अप्लाई करते हो। तो वहां से भी सिर्फ लक नहीं होता। मैं कहता हूँ कि कुछ लक होता है मार्केट में, बट इतना भी नहीं होता कि आप सिर्फ लक के भरोसे बैठे हो कि हाँ यहाँ मैंने आज खरीद लिया है, अब यहाँ से ऊपर चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, या नीचे चले जाएगा वहां से, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट इट्स यूसेज, RSI is used to identify potential reversal points and assess the strength of a trend. It's particularly useful in conjunction with other indicators to confirm signals, ठीक है। तो मैं आपको RSI का एग्जाम्पल्स देके दिखाता हूँ कि RSI कैसे काम करती है और हमें RSI कैसे अप्लाई करना है चार्ट पे, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई विल टेक चार्ट ऑफ रिलायंस और फिर मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ RSI कैसे काम कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो पहले तो मैं ये, गाइस थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, एक सेकेंड। RSI चार्ट पे लगा लिया मैंने, ठीक है। हाँ, ये EMA बंद कर देता हूँ। करता है, प्रोबेबिलिटी तो है ही, लक भी बहुत। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि जैसा कि मैंने बताया कि RSI जब भी 30 के आसपास आती है, ये देख लो, तो मार्केट में क्या होता है। सॉरी गाइस, वो थोड़ा फिर से लगा देता हूँ मैं। मार्केट यहाँ पे देखो, RSI 30 आ गया था हमारा, ठीक है। फिर मार्केट में वहां से एक अपसाइड की मूव आई है तगड़ी, और परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये तो 35% के आसपास के मार्केट ने वहां से अपसाइड की मोमेंटम दी है, ठीक है। सेम चीज मैं आपको पीछे भी करके दिखाता हूँ, रिलायंस के चार्ट पे दिखाता हूँ कि पहले कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, ठीक है। आप ये देख लो, यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा एग्जाम्पल मिल गया है कि, रुक जाओ, ये देखो RSI यहाँ पे 30 के आसपास आया है, प्राइस भी अपना यहाँ, फिर यहाँ से मार्केट ने अपसाइड की रैली दी है, 20% की रैली मिल गई है आपको यहाँ से RSI के बाद, जब ये RSI 30 पे आया उसके बाद। अब सेम चीज आप देख लो, जैसे हमारा बैंड था, मैंने आपको बताया एक रेंज होता है इसमें 30 और 70 का। तो सेम चीज आप देखो, जब ये RSI 70 पे आया यहाँ पे, तो फिर मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा। आप प्रखर, माइक बंद कर लो अपना प्लीज। नहीं हमारे देना। थैंक यू प्रखर। एंड हाँ देखो गाइस, बैक टू आवर एनालिसिस। यहाँ देखो, जब ये RSI 70 पे आता है तो यहाँ फिर मार्केट एक ओवरसोल्ड कंडीशन, ओवरबॉट कंडीशंस पे आ जाता है, और फिर वहां से मार्केट में रिवर्सल आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मार्केट ने ऐसा रिवर्स कर दिया है। मैं आपको परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ इसने कितना डाउन साइड पे फॉल दिखाया है। ये लगभग 22% के आसपास का फॉल मिला आपको मार्केट में, और 4 महीने के अप्रोक्स आपको ये चीजें मिल गई है, ठीक है। Now I'd like Connect to take over the fundamental part. So So hey guys, I hope my screen is visible.
Okay. So I'm Kanishk and I'll be serving as the co-head of this department alongside Shashank. So I'll be covering the fundamental aspect of the market. As explained by Shashank, technical analysis is used to predict what will happen in the future. Like what will like how we get the best price to enter, and we predict the up moves or down moves from the technical analysis. But the question is what drives those up moves. उसके लिए we have to know how the companies work, what are the companies financials, like material facts जो उस रैली को ड्राइव कर रहा है वो हम फंडामेंटल एनालिसिस से जानते हैं. So basically अब स्टार्ट करते हैं with our first part. Like first of all, what is fundamental analysis? Fundamental analysis is basically knowing the performance of a company to determine whether the stock is going to company's overall performance is like if the company is profitable, liquid and all. Like पहले बताओ commerce students कितने हैं? Please raise your hands. Nice. मैं सर. ग्रेट. चलो काफी 17 रेज हैंड्स दिख रहे हैं मुझे. नाइस. देखो समझ आ जाएगा आपको बेटर समझ आएगा, बट जो नहीं है डोंट वरी, आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आपको अच्छे से समझ आए. सो फंडामेंटल एनालिसिस में अब 12th में हम 11th में हम सब करके आ रहे हैं कि हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिटरमाइन कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. अब आप जब बना रहे थे, यहाँ पर आपका इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है. सो फंडामेंटल्स के फर्स्ट एनालिसिस पे चलते हैं. फर्स्ट वन बीइंग द रेशियो एनालिसिस. अब देखो इन 12th क्लास जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, 12th क्लास में सबने पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तब सोचते थे हम कि क्या ही यूज है इसका, लाइक रेशियोज निकाल रहे हैं, मतलब मटेरियली हमें पता था कि वो रेशियोज क्या इंटरप्रेट कर रही हैं, बट हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते थे ना. अब हम यहाँ पर उसका एक बहुत मेजर रोल प्ले होता है. So basically, ratio analysis involves evaluating the financial performance of a company by comparing various financial metrics derived from a company's financial statements. It helps investors assess a company's profitability, liquidity, efficiency and solvency. ये 4 ratios की types थी, ये हमने पढ़ा था. Like अब हम यहाँ पर basically इस session को हम simple रखेंगे, and for those who are from the non-commerce background, so हम 3 key ratios discuss करेंगे. First one being the price to earnings ratio. The price to earnings ratio measures the company's current share price relative to its earnings per share. A high PE ratio may indicate that the stock is overvalued or investors are expecting high growth rates. Basically, एक PE ratio है, as the name suggests, price और earnings per share को हम divide कर देते हैं. Earnings per share indicate that finally जो हमारे पास कंपनी का net profit आता है, divided by the number of equity shares that are outstanding in the market. उससे हम निकालते हैं EPS, अर्निंग्स पर शेयर, की एक शेयर होल्डर के लिए कितनी अर्निंग्स है. एंड व्हेन वी डिवाइड द प्राइस बाय द EPS, वी गेट टू नो दैट हम 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे करने को तैयार है. अगर 20 रुपीज का PE है, तो फॉर अ कंपनी अर्निंग 1 रुपी वी आर गोइंग टू पे 20 रुपीज. तो आप ऑब्वियसली एक रुपए की अर्निंग के लिए आप कम पे करना चाहोगे. So lower PE indicates that the stock is undervalued, and a higher one indicates that it is overvalued. But still, it is not a thumb rule or not like a science or something कि 2080 का PE का हमने एक पैरामीटर बना रखा है और वो हर जगह एप्लीकेबल होगा. अलग टाइप की अलग कंपनीज होती हैं. Growth companies and usually the indicating high earning growth will trade on a higher PE, and still you will see a consistent uptrend. एंड समटाइम्स लोअर PE कंपनीज परफॉर्म ही नहीं कर पाती, क्योंकि अगर अर्निंग भी नहीं है और प्राइस भी उनका वैल्यू नहीं है, तो बेसिकली दे आर डेड. सो लेट्स अब हम स्क्रीनर पर चलते हैं एंड लेट्स सी द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ इट. नाउ एक RPG लाइफ, आई गेस इसमें ऑलमोस्ट हमारे सारे पैरामीटर्स मीट होते हैं. जस्ट अ सेक. सी देखो, दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट 41 का PE, राइट. And let's see the price chart. कि इसका just a sec. देखो अराउंड 2017 के बाद यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था. लाइक है तो कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में, बट एक अच्छे से 2 to 3 years के लिए ये एक डाउन रैली में चला गया. बट आफ्टर दैट इट टुक ऑफ.
देखो, और after the COVID and it is in a consistent uptrend. अब देखो, this is an organically fueled rally. Like many, आपने बहुत स्टॉक्स में सुना होगा कि ऐसे ही बढ़ते गए, फ्रीजेस पे चलते गए. Like that's not organically driven and वो बहुत रिस्की स्टॉक्स हो जाते हैं. और जब डाउन फ्रीजेस लगती हैं तब भी आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगा उसमें से. तो अब लाइक इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ पी रेशियो का क्या इम्प्लीकेशन है. देखो, दिस इज द पी चार्ट. Please note that these bars, the bar charts, are the earnings per share, like the earnings growth. And this line, this is the P ratio. तो price upon earning का एक like देखो, around मैंने अभी आपको रैली दिखाया था, 20 के बाद एक रैली शुरू हुई. उसके पहले see the earnings were very inconsistent and the P was also very high at some time. And after the 2020, the consistent uptrend of an earnings began. Following with a fairly valued P. इससे क्या इम्प्लीकेट होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियोस एक क्लोज रेंज में घूम रहा है कि आप जो पे कर रहे हो एग्जैक्टली अर्निंग्स कंपनी अर्न कर रही है. तो आप एक फेयरली वैल्यूड पेमेंट कर रहे हो कंपनी को, लाइक कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो आप एक फेयर वैल्यू पे कर रहे हो. तभी दिस कंपनी इज एन कंसिस्टेंट अपट्रेंड एंड आई होप दैट अभी थोड़ा करेक्शन आए, बट आगे जाकर दिस लाइक अगर अर्निंग्स की ग्रोथ ऐसे रही सो यू विल स्टिल पे फेयर एंड दिस विल गो. So this is a major factor to consider while analysis. Now without wasting so much time, let's go to the return on equity part. So अब आपने पढ़ा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सबको ऑब्वियस समझ आ गया होगा. रिटर्न इज दैट नेट प्रॉफिट दैट वी अर्न, जो सब काटने के बाद आता है, निकालने के बाद जो गलती आता था हमारा और हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती थी, बैड डेज. ठीक है, तो ये दैट्स द रिटर्न ऑन इक्विटी. अब देखो ओनर कितना पैसा लगा रहा है. रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज यूजिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी टू जनरेट द प्रॉफिट्स. इट इज कैलकुलेटेड एज नेट इनकम डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर इक्विटी. मतलब कि देखो, ये आई होप आपको आप सबको पता होगा कि डेब्ट एंड इक्विटी होता है. डेब्ट होता है उधार का पैसा, इक्विटी होता है अपना पैसा. तो अपने पैसे पर लाइक अगर 100 का डेब्ट है उसमें से 50-50 डेब्ट इक्विटी है, तो 50 के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, दैट्स द रिटर्न ऑन इक्विटी. सो ऑब्वियसली हायर ROE इज हायर द बेटर. सो हम मानते हैं कि अराउंड 10+ होनी चाहिए, बट रिलायंस हैज 9% इक्विटी ROEs, बट स्टिल इट इज अ ग्रेट कंपनी. इसमें भी कोई टेलर मेड रूल नहीं है, बट स्टिल व्हाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंसीडर दैट इट इज अबव 10. अब ROE के अंदर ही आई वांट टू एक्सप्लेन एक important part. Like I guess this is the most important thing to analyze for a company. Like अगर आपको अच्छा ROE दिख रहा है कंपनी में, so if you want to deep dive into it, तो ये DuPont analysis is a good measure. देखो, अब बेसिक मैथ्स है 5th क्लास की. रेवेन्यू से रेवेन्यू कट जाएगा, एवरेज टोटल एसेट से एवरेज टोटल एसेट कट जाएगा, एंड में बचेगा नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल इक्विटी. ये क्या इंडिकेट करता है, हमने इसको क्यों बांटा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम. देखो, इसका ये रीजन है, इसमें हमारे पास 3 रेशियोज निकल के आती हैं. फर्स्ट वन बीइंग द नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू, दैट्स द नेट प्रॉफिट मार्जिन, कि कंपनी अपनी सेल्स पर कितना कमा रही है. ये भी आपने पढ़ा होगा जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपनी जो सेल कर रही है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमा रही है. सो दैट इंडिकेट्स कंपनी की प्राइसिंग पावर, कि आप प्राइसेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पा रहे हो. तो अगर आपका ROE ओवर द ROE के अंदर नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू ओवर द टाइम इंक्रीज हो रहा हो, दैट्स द पॉजिटिव थिंग फॉर अ कंपनी. सेकंड वन इज द रेवेन्यू अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, दैट्स द एसेट टर्नओवर रेशियो. ये भी पढ़ा था, ठीक है. इसके अंदर कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता लगता है कि अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके कंपनी कितनी सेल्स जनरेट कर रही है. तो अगर इन द इंक्रीजिंग ROE ये दो फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइसिंग पावर भी बढ़ रही है एंड एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, दैट्स अ गुड फैक्टर फॉर अ कंपनी. अब थर्ड वन, लाइक दोनों बढ़ ही रहे हैं तो हम क्यों इतना दिमाग खपाई कर रहे हैं. अब आएगा थर्ड पार्ट, दैट्स द मेन थिंग. सी दिस एवरेज टोटल एसेट अपॉन एवरेज टोटल इक्विटी, दिस इज द फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो. फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, मैं आपको एक एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ. देखो, अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ, लाइक मैंने मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, एंड मैंने 200 रुपए उधार लिए एंड मैं 300 रुपए के ऊपर कैपिटल पर ट्रेड कर रहा हूँ.
300 रुपए पर अगर मेरा प्रॉफिट होता है 10% का, तो आई अर्न 30, राइट? एंड ऑन मेरी अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है? 100-200 मेरा उधार का है, तो मैंने 100 की कैपिटल के ऊपर 30 कमा लिया, ठीक है? अच्छा, मैंने अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट कर लिया उधार लेकर, बट अगर लॉस हो जाए तो मैं 100 के ऊपर ही, मान लो अगर 10% लॉस हो गया तो ओवरऑल 300 पे, तो मैं 30 रुपीज खो दूंगा अपनी कैपिटल पे। दैट्स 30% लॉस ऑन माय ओन कैपिटल। तो मेरा एक इन्फ्लेशन हो गया यहाँ पर कि डेप्ट लेकर मैं काम कर रहा हूँ एंड ज्यादा कैपिटल मेरी मतलब मेरे पास डेप्ट कैपिटल ज्यादा है, तो मेरे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाते हैं। ये भी आपकी बिजनेस स्टडीज में था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। ये फाइनेंशियल रिस्क हैं कि मैं अपने स्टेक होल्डर्स को रीपे नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ओवर द टाइम फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज हो रही है, उसके थ्रू रिटर्न ऑन इक्विटी इन्फ्लेट हो रहा है कि मैं फाइनेंशियल लेवरेज के थ्रू रिटर्न ले रहा हूं, तो मेरी बिजनेस का रिस्क बढ़ रहा है। तो दैट्स अ नेगेटिव फैक्टर फॉर अ कंपनी। तो हमें देखना है कि ये दो रेशियोज, the first two ratios should be increasing and the third one should be decreasing, and that should justify the ROE. ठीक है, अब let's go into the screener and see it practically. देखो 25% का return on equity RPG Life Sciences deliver कर रहा है। Now let's go to the DuPont analysis. देखो स्क्रीनर है, इसे देखकर कंफ्यूज मत होना, I'll try to explain it later. अभी just focus on the ROE part. देखो, this is the DuPont ROE analysis. See, ROE increase हो रहा है, 5% था 2013 में, then 42, then like inconsistent था, अब ये अच्छी consistent growth में आया, around 23.47 for the March 2024. अब इसकी breakdown देखो, जो मैंने 3 ratios बताई आपको, 1.8 से 15 पहुंच गया, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंपनी प्राइस कर पा रही है, अपना प्राइसिंग पावर मोट है कंपनी के पास। देखो मोट मतलब इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, बेसिकली एक कंपनी के पास एक फैक्टर है। सेकंड वन इज द एसेट टर्नओवर रेशियो। इस साल थोड़ा डाउन हुआ है बट स्टिल अच्छा मेंटेन कर रहा है, कंसिस्टेंट है। एंड सी द फाइनेंशियल लेवरेज, दैट्स द एलिफेंट इन द रूम हियर। यहाँ पर 2.71 से 1.37 पहुंच गया फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, मतलब कि कंपनी अपना डेप्ट रिड्यूस कर रही है, अपना रिस्क रिड्यूस कर रही है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। दैट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दिस कंपनी। अब DuPont analysis, I guess ROE is done. Now let's go to the debt to equity ratio. देखो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी हमने पढ़ा था 12th में, जो भी कॉमर्स से हैं, बाकी मैं बता देता हूँ। डेब्ट क्या होता है? बाहर से लिया हुआ कर्जा। इक्विटी होती है अपनी ओन इन्वेस्टेड, ठीक है? तो हमें एक आइडियल डेब्ट टू इक्विटी मिक्स निकालना पड़ता है टू ऑप्टिमाइज दैट हमारा ईपीएस ऑप्टिमाइज हो जाए। ये एक बीएसटी का टॉपिक था जिसमें हम ईपीएस को ऑप्टिमाइज करते थे। हमने 3 केसेस लेते थे, एक में हम ज्यादा डेब्ट इक्विटी ले लेते थे, एक में हम ज्यादा डेब्ट ले लेते थे और एक में एक आइडियल मिक्स लेते थे। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक आइडियल मिक्स में हमारे पास हाईएस्ट ईपीएस आता था, जो शेयर होल्डर्स को एक प्रॉपर अर्निंग्स मिल रही है। तो हमें हमेशा ईपीएस को, हमारा हमेशा रोल रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। दैट्स द लॉजिक हियर। तो हमें एक आइडियल रेशियो चाहिए फॉर अ कंपनी। लाइक अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो लोअर द डेब्ट टू इक्विटी इज बेटर। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेट, दिस इज लाइक 0 ही है ऑलमोस्ट, मतलब क्लोज टू 0 है। लाइक कंपनी के पास डेब्ट कम है, दैट्स अ पॉजिटिव फैक्टर हियर। जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कंपनीज को, जैसे पीयर कंपैरिजन है। लाइक हमें हमेशा कंपैरिजन में देखना चाहिए चीजों को। डेब्ट टू इक्विटी देखो, सन फार्मा की 0.05 है, आरबीजी लाइफ की 0 है। वैसे इन कंपैरिजन वी कैन चेक द पी रेशियो 41 है इसकी, एंड इन कंपैरिजन थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट स्टिल वी डोंट गेट टू दैट, दैट्स एडवांस टॉपिक, ठीक है? नाउ फाइनेंस आवर रेशियो एनालिसिस इज ओवर। जाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? पीएनएल अकाउंट बनाते थे हम 11th क्लास में। 12th क्लास में लास्ट में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सीखी थी, बैलेंस शीट थी, वो उसको सिर्फ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल वो जो बनाना होता था वो सब होता था हमारे पास। अब पीएनएल स्टेटमेंट है, देखो एक तो नॉर्मल पीएनएल होता था, हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट का अलग फॉर्मेट होता है। तो लेट्स गेट टू दैट। फर्स्ट थोड़ा इसका थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी पर। The income statement provides information about company's revenue, expenses, profits, and over a specific period.
It helps investor understand how efficiently a company is generating profit and from its operations. Key metrics: revenue, total income from sales or of goods and services, net income, profit after all expenses, tax, cost have been deducting from the revenue, EPS. यही जो EPS का explanation दिया मैंने कि एक शेयर होल्डर के लिए कंपनी कितना पैसा अर्न कर रही है, दैट्स EPS. ओके, सी ये है हमारी इनकम स्टेटमेंट. सी दिस इज द स्क्रीनर. इसमें हमें अराउंड 10 years का डेटा मिल जाता है. वैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफिशियली जो कंपनी इशू करती है, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, सॉरी गाइस, ये रहा. हाँ देखो, दिस इज द अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर. लाइक 2 years की मिलती है हमें, 10 years का डेटा स्क्रीनर में मिल रहा है. बट फॉर एडवांस एनालिसिस हम इसे फॉलो करते हैं. वो जस्ट स्क्रीनर इज जस्ट टू गेट एन आइडिया. इस पे भी हम डेप्थ में जाएंगे बाद में. देखो P&L स्टेटमेंट. अब फर्स्ट कॉलम है हमारा सेल्स, कि कंपनी सेल्स कितना कर रही है अपने और रेवेन्यू ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू जनरेट. दैट्स द RFO. इससे सेल्स में भी we'll get the sales growth की कंपनी ओवर द ईयर कितना सेल्स ग्रो कर रही है. अब देखो सेल्स की ग्रोथ अगर पॉजिटिव है, दैट्स पॉजिटिव फॉर द कंपनी. तो चेक कर लो कि सेल्स ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है. अब सेल्स में से हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, पढ़ा था हमने P&L, ग्रॉस प्रॉफिट जो स्टार्टिंग का अकाउंट होता था, ट्रेडिंग अकाउंट में से जब हम एक्सपेंसेस काटते थे, लाने ले जाने के खर्चे, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस काटते थे. आफ्टर दैट वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ पर इसने डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिया. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक अच्छा मेजर है टू चेक वेदर द कंपनी इज लाइक ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करने के काम आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. और उसके ऊपर एक रेशियो होता है ऑपरेटिंग मार्जिन, द OPM परसेंट. देखो, अब हायर द ऑपरेटिंग मार्जिन, हायर इट इज बेटर एंड इट शुड कंसिस्टेंटली इंक्रीज, की कंपनी अपने प्राइम ऑपरेशंस में अच्छे से काम कर रही है. ठीक है. अब अदर इनकम होती है कि एक्सेप्शनल गेन, नॉन एक्सेप्शनल गेन, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन. ठीक है. तो अदर इनकम वी शुड चेक दैट, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेजर, क्योंकि कई बार देखो अब अदर इनकम है, इसकी वजह से यहाँ पर एकदम से 65 का प्रॉफिट आ गया. सो दैट्स अब्सर्ड कि तुम्हारा सिर्फ 1 crore का प्रॉफिट था लास्ट ईयर और इस ईयर आप 65 crores कर रहे हो. तो हमें चेक करना चाहिए कि अदर इनकम में क्या है, एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, क्योंकि ये एवरी ईयर नहीं होगा. ये गुडविल वाले चैप्टर में था हमारे पास कि 12th में कि एक्सेप्शनल इनकम्स और गेन्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सरकार मोदी जी को दिए बिना कितना पैसा बचा हमारे पास. आफ्टर दैट ये मोदी जी को दे दिया हमने एंड नेट प्रॉफिट हमारे पास बच गया. उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं EPS, द अर्निंग्स पर शेयर. इसे डिवाइड करते हैं. इसमें भी बहुत कुछ है, अलग अलग टर्म्स हैं, ये डेप्थ में चला जाएगा. यू शुड नो द बेसिक्स फर्स्ट. अब दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, लाइक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की हर 10 years में, पिछले 10 years के टाइम फ्रेम में 1 year में कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना प्रॉफिट ग्रो कर रही है. That's the CAGR. This gives you a snapshot of the overall company. Like these 4 boxes are an important thing for you to analyze कि first में company का overall performance कैसा है on the year basis. This is over for the P&L now. Now let's go to the balance sheet. Okay, the balance sheet पता है सबका दुख, मैच नहीं होता था. Balance sheet provides a snapshot of the company's assets, liabilities, shareholder equity at the specific point in time. It helps investors to understand the company's financial position. Key components: first, assets, resources owned by the company, including cash, inventory, property. Liabilities, obligation the company owes, such as loans and accounts payable. The shareholder equity, ये नई चीज है. Assets, ट्रेडिशनल जो अकाउंटिंग होती है सोल प्रोप्राइटर की एंड उस लाइक पार्टनरशिप की, उसमें हमें नहीं देखते थे, बट कंपनीज में शेयर होल्डर इक्विटी होती है. रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटीज. ओके, अब बैलेंस शीट देख लेते हैं. देखो ये सिंपल सी बैलेंस शीट है. इक्विटी कैपिटल आ गया देखो हमारा फर्स्ट पे. रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे प्रॉफिट्स होते हैं. बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लीज लायबिलिटीज एटसेट्रा. एंड यहाँ आ गया.
एंड लाइक ये सब हम चेक कर सकते हैं, ये एडवांस एनालिसिस में काम आएगा कि अगर हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बढ़ रही है तो दैट्स अ नेगेटिव थिंग, क्योंकि हमारा रिस्क बढ़ रहा है। अब हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। सो दिस इज इट फॉर द बैलेंस शीट। Now the second last one being the cash flow statement. Cash flow statement भी पढ़ा था लास्ट में, बड़ा सा क्वेश्चन आता था हमारा, एंड उसमें देख लेते हैं कैश फ्लो को। Overview: the cash flow statement tracks the flow of cash and out of the company. It's divided into operating, investing and financing activities. Operating cash flow, cash generated from company's core business operations. कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग से कितना कैश आ रहा है, रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट से कितना कैश आ रहा है। हाँ देखो, फाइनेंसिंग कंपनी है, अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है, ये भी था हमारे पास कि हमारे पास ये एक लाइक फाइनेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव में वो उसके डे टू डे ऑपरेशंस है। तो अगर कोई कंपनी लोन ले रही है, लोन से उसके पास प्रोसीड्स आ रहे हैं, दैट्स द ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर अ फाइनेंस कंपनी। Second one being the investing cash flow, cash used or generated from investments in asset like purchasing equipment and for acquiring other companies. Investments कितना कर रहे हो, assets कितना ले रहे हो। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के हैं, क्योंकि कंपनी स्केल कर रही है, कंपनी की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। थर्ड वन बीइंग द फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, कैश फ्लो रिलेटेड टू बोरोइंग, रिपेइंग डेब्ट एंड इशूइंग एंड बाइंग बैक द शेयर्स। अब देखो, लेट्स चेक द कैश फ्लो ऑन द स्क्रीनर। देखो, इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बढ़ रहा है, ठीक है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन्वेस्टिंग में हमारे पास नेगेटिव है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी का ग्रोथ स्टेज है। देखो, फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं हमारे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है, एंड नेट कैश फ्लो, द फाइनल इन तीनों का सम जो होता है वो नेट कैश फ्लो होता है। अब नाउ लेट्स मूव टू द promote shareholding patterns. I guess this is a great measure to check, like सब एनालिसिस करने के बाद आपको ये चेक करना चाहिए कि कंपनी में स्टेक किसने ले रखा है, को कितना इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। Importance of shareholding pattern. Shareholding pattern reveals the ownership structure of the company. Understanding who owns the majority of the shares can provide insights into company stability and potential influence on the management and decision making. देखो, कौन कितनी बिग वेल उसे होल्ड कर रही है, कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, दैट डिटरमाइंस की कंपनी कितनी सिक्योर है। तो there are three considerations. First one being the promoter holdings. A higher promoter holding generally indicates strong control and confidence in the company's future. देखो, कंपनी, अगर मैं प्रोमोटर हूँ, मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में शेयर होल्डर करके बैठा हूँ, लाइक मैं प्रोमोटर हूँ, मुझे पता है मेरी कंपनी कैसा परफॉर्म करी, अंदर की मुझे सारी बातें पता है, मैं बेसिकली इनसाइडर हूँ प्रॉपर अपने लिए। अगर अब मैं ही अपनी कंपनी से स्टेक बेच के निकल रहा हूँ, लाइक एक तो बेसिक हो गया कि मुझे पैसे की जरूरत है, एक कि मैं स्टेक बेच के निकलता जा रहा हूँ और पब्लिक में बेच रहा हूँ उसे, तो दैट्स द नेगेटिव थिंग कि मुझे अपनी कंपनी में ही अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाहर वाले क्यों इन्वेस्ट करें, तो आप भी मत करना, ठीक है। Second one being the institutional holding. Institutional holding involves the share held by the mutual funds, insurance company and other large entities. High institutional holding is often seen as a positive signal for the trust in the company. देखो, दो टाइप के institutional investors होते हैं, first one being the foreign institutional investors, second one being the domestic institutional investors. अब देखो, अगर institution के लोग हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, उन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज है और रिटेलर से तो ज्यादा नॉलेज ही है ऑब्वियसली, तो अगर वो स्टेक ले रहे हैं, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। लाइक अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग कम हो रही है और अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ रही है, दैट्स आल्सो अ पॉजिटिव थिंग। थर्ड वन बीइंग द पब्लिक शेयर होल्डिंग, द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स. A higher public shareholding can increase stock liquidity, but may also lead to more volatility. देखो, अब हम जैसे लोग हैं, हम हैं लाइक डरे हुए लोग, थोड़ी सी मार्केट ऊपर नीचे होगी, हम बेच भी निकल जाएंगे। तो अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास ज्यादा हो तो इट कैन लीड टू मोर वोलेटिलिटी, क्योंकि ज्यादा फ्री फ्लोट है, ज्यादा डरपोक लोग हैं एंड वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स चेक इट्स शेयर होल्डर पैटर्न। देखो, आरपीजी लाइफ का कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है, बल्कि इस ईयर 2017 से लेके 24 तक इंक्रीज ही हुआ है। उन्हें कॉन्फिडेंस ज्यादा जा रहा है अपनी कंपनी में,
वो खरीद रहे हैं पब्लिक से, वो कम कि भाई लो इनसे, ये ठीक लोग नहीं है, ये वोलेटिलिटी कम कर देते हैं और बढ़ा देते हैं और हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वेल एंड गुड। FII की स्टेक इंक्रीज हुई है, DIIs की भी स्टेक इंक्रीज हुई है, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर अ कंपनी। देखो these terms are very subjective and बहुत जगहों पर यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इन्हें हमें चेक करना चाहिए in order to make the best investment decisions. अब now I have 3 more stocks जिनमें काफी चीजें मीट हो रही हैं. I'll explain them to you. देखो, first one being the Chalet Hotels. Chalet Hotels सबने सुना ही होगा Chalet Hotels के बारे में, पायनियर इन होटल इंडस्ट्री. अब देखो, इसमें एक अच्छी रैली आई थी आफ्टर कोविड. देखो, कोविड में क्रैश आया, सब गिर गए थे, सब बंद थे. उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ. कंसोलिडेशन थोड़ी एडवांस टर्म है, आई होप शशांक ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, मैं भी बता देता हूँ. कंसोलिडेशन होता है जब प्राइस एक पर्टिकुलर एरिया में रिवॉल्व करता रहता है. अब देखो, यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेशन हुआ एंड देन एक ट्रेंड अपलिफ्ट हो गया. क्यों हुआ? क्योंकि कोविड के टाइम तो सब बंद था, इनको लॉस हो रहा था. फिर आई रिवेंज टूरिज्म, सबको बाहर निकलना था, सब बंद थे, तो यहां से एक रैली स्टार्ट हो गई. अब इसे फंडामेंटली देखते हैं. फंडामेंटली क्या हुआ? अराउंड 2022 में अर्निंग्स पिकअप हो गई, लोग होटल्स में जाने लग गए. जब सारा कोविड का जो लॉस था वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो गया. द प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो बहुत इन्फ्लेटेड था, अराउंड 290 से ड्रॉप होकर 59 एक फेयर वैल्यू पर आ गया. और एक अच्छी रैली दी है इसने विद कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड एन ऑसिलेटिंग पी इन अ पर्टिकुलर रेंज. तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर इट. अब देखो, इसके अच्छी रैली दे रहा है ये, अभी भी पी इज नॉट दैट ओवर वैल्यूड, तो अच्छी रैली आएगी आगे भी. एंड इसके अंदर देखो, इसकी स्टेटमेंट में देख लो, कोविड के टाइम थोड़ा सा डाउन था, बाकी इट्स अभी तक अच्छा ही परफॉर्म कर. देखो, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना हाई है, 34-49 की रेंज में चल रहा है, कि इसकी अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है. एंड थर्ड वन इज ROE का एनालिसिस कर लेते हैं. अराउंड 16% ROE है. नॉर्मल है, ज्यादा हाई भी नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं है, फेयर है, मतलब अच्छा ही मानेंगे इसको. ड्यू पॉइंट एनालिसिस कर लेते हैं. देखो, -16% से 15% ROE आई. NPM भी माइनस से पॉजिटिव हो गया, प्लस फाइनेंशियल लेवरेज 4 से 3 हो गया. कितना अच्छा ग्रोथ दिखाया विद द लोअर डेट, दैट्स गुड. एंड प्रोमोटर होल्डिंग्स भी ठीक है, कंसिस्टेंटली मेंटेन है. इस बार थोड़ा कम हुआ है, पर देखो, FIIs ने स्टेक बाय किया, DIIs ने स्टेक बाय किया, पब्लिक का फिर भी कम हुआ है, तो अच्छे लोगों के हाथ में है, तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. थर्ड वन, बजाज ऑटो. लेट्स चेक बजाज ऑटो. आजकल बहुत रैली आ रही है अच्छी इसकी भी. बजाज ऑटो का देखो, इसको भी हम एक तरीके का कंसोलिडेशन टाइप मानेंगे. एंड इन अराउंड 23 अच्छा स्पर्ट आया है इसमें. देखो, अब इसका फंडामेंटल चेक करते हैं. 26% का ROE ये कंपनी डिलीवर कर रही है. दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. पहले इसका हम PE देख लेते हैं. देखो, अराउंड 23 जब मैंने आपको रैली दिखाई थी, पहले एक इनकंसिस्टेंट सी अर्निंग्स थी इसकी, लेकिन अब एकदम से अर्निंग्स ग्रोथ आई. दैट रिप्रेजेंट्स कि देखो, 21 में थोड़ा हाईली वैल्यूड था, एक फेयर वैल्यू पे आया शेयर, एंड आफ्टर दैट ये रैली हुई विद कंसोलिडेटिंग पी. अब थोड़ा हाई हो गया, अभी ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, स्मॉल कैप की तरह चल रहा है, बट थोड़ी सी करेक्शन एंटिसिपेटेड है क्योंकि पी इज ओवर वैल्यूड. अब ROE एनालिसिस कर लेते हैं. सेकेंड, हाँ, देखो, ड्यू पॉइंट ROE 38% था पहले, धीरे धीरे, मतलब एक साइक्लिकल पैराबोलिक टाइप का है, अभी फिर लास्ट 4 इयर्स में इंक्रीज हो रहा है. NPM भी फेयर है, 16%. प्राइसिंग पावर अच्छा है, टर्नओवर भी अच्छा है, बट थोड़ा सा लेवरेज कंसिस्टेंट है. लाइक आई वोंट से कि बहुत हाई होगा, बट ठीक है. एंड इट इज अ निफ्टी 50 स्टॉक, सो निफ्टी 50 स्टॉक्स की अच्छी रैली रहती है, क्योंकि थोड़ा सोच समझ के डाला जाता है निफ्टी में, भाई देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके. अब शेयर होल्डिंग पैटर्न कंसिस्टेंट है, इंक्रीज ही हुआ है, 49 से 55 हो गया. प्रोमोटर्स बाइंग कर रहे हैं. FIIs का भी स्टेक थोड़ा सा कम, FIIs का स्टेक भी ठीक है, अराउंड कोविड के टाइम इन्होंने बेचा था, बट अब फिर भी कंसिस्टेंटली बाय कर रहे हैं.
DIS भी इंक्रीज कर रहे हैं इसमें, एंड पब्लिक की कांस्टेंट है, सो दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, दिस कंपनी इज फेयरली वैल्यूड। एंड लास्ट वन बीइंग द शशांक, यू हैव टू से समथिंग। आई वांट टू से दैट कि अब क्यों नहीं कर लेते हैं। Okay, let's complete the last topic. अनंतराज बाद में एनालिसिस बता दूंगा आपको, एक स्लाइड रह गई है, एंड आफ्टर दैट we'll open the room for Q&A. So first, how to integrate the technical and fundamental analysis to make the informed decision. First, check out the stocks. Find a good stock with a good consolidation or an underlying chart pattern, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी स्ट्रेटजी बनती है end of the day. After that, check the fundamentals. ROE, P ratio, promoter holdings जो मैंने explain किया. If the stock is fundamentally strong, come back to the technical analysis part. वापस आओ, अपना fair price ढूंढो where you want to enter, and find the like using favorite reference days, ये support resistance, ये भी थोड़ा advanced part में आ जाता है. Fourth one being the place a limit order with your ideal stock price. देखो, लिमिट ऑर्डर इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मार्केट ऑर्डर फाइंड्स द बेस्ट प्राइस की अगर आपको बाय करना है तो आपको बेस्ट प्राइस पे बाय करवा देगा, एंड एक्सचेंज यूजेस अ प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस। लाइक ऑर्डर्स जो लगते हैं वो एक प्राइस टाइम प्रायोरिटी पे लगते हैं, कि जो हाईएस्ट बिडर है, मतलब मैंने अगर 4 लोग हैं जो मैं 36 पे खरीदना चाहता हूँ, कोई 38 पे खरीदना चाहता है, तो 38 वाले को पहले ऑर्डर मिलेगा। एंड तो अगर आप मार्केट प्राइस कर दोगे तो आपको मतलब अपने आप जो वो डिजर्व करता है प्राइस, आपको उससे ज्यादा देना पड़ेगा। सो ट्राई की लिमिट प्राइस लगाओ, अपने हक के लिए लड़ो। एंड लास्ट वन बीइंग स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। स्टॉप लॉस, अगर आपका पोजीशन गोज साउथ, देन यू कैन एनकाउंटर वेरी लॉस, अच्छे लॉसेस। जितना भी एनालिसिस कर लो, फेल होता है कभी भी, मतलब प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा। So don't chase की odds के against मत जाओ, and now you're good to go. Happy investing. Now we are opening the floor for the questions. You guys can ask anything, like अपने जो doubts हैं, you can ask that. Hello, am I audible? Yes, sir.